All right. A warm welcome and good evening, ladies and gentlemen. Most of you, I met in Lucknow. My name is Vinod Pandey. I'm the general manager of Taj Mahal Lucknow. For me, it's been a year. I exactly came same time last year. Before that, I was working with Taj Mahal New Delhi. We call it Taj Mansingh. And coming here in Lucknow, of course, it's coming back to the roots. I belong to Uttar Pradesh, and returning after working in different states with different Taj hotels, and returning after 25 years. So I extend a warm welcome to all of you with my team here. I'm very happy for this evening. This was something which we were planning, at least I had in my mind for the time I moved in here. Of course, understanding Lucknow, what it stands for, art, culture, and how rich history this city and state carries with it. Coming to Prabha Khaitan, so this was my own journey with Taj that took me to Taj Bengal, Calcutta, where I was heading the food and beverage operations, and I came across with Prabha Khaitan team, Mr. Sandeep Putoria, who was the managing trustee, and of course, Cement, Mr. Bangur. And over a cup of coffee, we thought that we must start something, for our chambers guest at Calcutta. And that's where we started with an author's afternoon. This was in 2012. And of course, working with Anandita, who is here, so happy to have you, Anandita, here. And then the whole program came out so well that a very niche, the audience, which promotes the literature. And back to back, we had authors, almost 2 authors to begin with initially every month. And in my 3-year stint, we did 16 authors in Lucknow. And I was happy to know, like today I was talking to her, that it's been some time when I left Bengal, Calcutta, that they've already completed 100 authors in Calcutta. My journey moved and took me to working with Prabha Khaitan also when I was in Taj Mansingh, where I got to know what is Ehsaas Women and had an opportunity to meet with them. And of course, it was not only Delhi, but I think it was whole of North India. We did another event, and that is where I decided when I moved in Lucknow, then I'll call for this evening where we have privilege to welcome all of you and get somebody like Mr. Irshad Kamil to come and grace the occasion. So we're very happy to welcome you in Lucknow, and I call Deepa now to take this program forward. And also wanted to tell the Taj that we are looking at not only just one event, but we're looking for the 11 to 12 calendar in a year to do some events like this, and look at from the vision of Prabha Khaitan, which started in 1980 to promote the art, culture, and of course women empowerment, gender equity, and so on. So today is dedicated to the Kalam, not an author's afternoon, but welcome all of you. Thank you. नमस्ते, आदाब एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कलम लखनऊ के इस सत्र में मैं दीपा मिश्रा, प्रभा खैतान फाउंडेशन और एहसास वुमेन की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम सबके लिए ये बेहद खुशी की बात है कि कोरोना के डरावने दौर से निकलकर हम एक दूसरे से यूं रूबरू हो पा रहे हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि प्रभा खैतान फाउंडेशन डॉक्टर प्रभा खैतान द्वारा 1980 में कोलकाता में स्थापित एक स्वयंसेवी संस्था है जो प्रदर्शन कलाओं, संस्कृति, शिक्षा, साहित्य, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। फाउंडेशन के कार्यक्रम और गतिविधियां भारत और दुनिया भर के 35 से भी अधिक शहरों में लगातार चलते रहती हैं। हम अपने आयोजनों में कलम के अलावा किताब, लफ्ज, एक मुलाकात विशेष, द राइट सर्कल, सुर और साज तथा आखिर जैसे कार्यक्रम करते हैं। जहां तक कलम की बात है, अपनी भाषा अपने लोग को बढ़ावा देने के लिए ये पहल अब दुनिया भर में लोकप्रिय हो चुकी है। इस मंच से हम लेखकों, कलाकारों को उनके प्रशंसकों और पाठकों से सीधे जोड़ते हैं। हमें खुशी है कि आज कलम के इस सत्र में हमारे साथ अतिथि के रूप में मौजूद हैं जाने माने गीतकार, शायर, कवि, नाटककार, संगीतकार, लेखक और समीक्षक शेरशाद कामिल जी। कुछ छूट गया तो माफी चाहती हूँ।
इरशाद जी अपने तरह के अनूठे गीतकार और कवि हैं। आपके गीत, आपकी कविताएं असलियत के आसमान में रोमानियत की उड़ान की तरह हैं, तो आपकी नज़में उम्मीद के धागों पर बारिश के बाद पानी की बूंदों की तरह तैरते रंग बिरंगे ख्वाबों को जुबा देती हैं। आपने रॉकस्टार, जब वी मेट, रांझना, आशिकी 2, सुल्तान जैसी कई फिल्मों के लिए गाने लिखे हैं और यकीन मानिए आपके गाने हम सभी के दिलों की धड़कनों में गूंजते हैं। फिल्म इंडस्ट्री को अपने पॉपुलर गानों से लुभाने वाले इरशाद जी की बोलती दीवारें, एक महीना नज़्मों का और काली औरत का ख्वाब नामक संग्रह भी पाठकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं। आप कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी युवाओं के लिए मौजूद रहते हैं। आपका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इरशाद कामिल लेखन में अपना करियर बनाने वालों के लिए बहुत उपयोगी है। इरशाद जी 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीत चुके हैं। इसके अलावा मिर्ची म्यूजिक, आईफा, जीमा, जी सिने, स्टार गिल्ड, स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन अवार्ड, स्पॉटिफाई, गाना.com ने भी आपको सम्मानित किया है। आपको साहिर लुधियानवी पुरस्कार, कैफी आज़मी पुरस्कार और शैलेंद्र पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। और अब मैं इरशाद जी को आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पे और साथ ही में कनक रेखा चौहान जी को। आप एहसास वुमेन ऑफ लखनऊ होने के साथ साथ लखनऊ लिटरेचर फेस्टिवल की फाउंडर डायरेक्टर भी हैं और आप सभी से निवेदन है कि अपने फोन कृपया साइलेंट मोड पे कर दें और इस सत्र का आनंद लें। धन्यवाद। हम सबको सिखाया है स्वैग से सबका करेंगे स्वागत। इरशाद जी के कलाम की एक खासियत है कि वो दोनों या कई पीढ़ियों के अंतर को मिटा देते हैं बड़ी खूबसूरती से। वैसे दीपा ने काफी आपका तारुफ कराया है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगी कि साहिर लुधियानवी के लुधियाना और आनंद बख्शी के नाभा के बीच संगरूर जिले में जन्मे मालेर कोटला के इरशाद साहब को कोई और तारुफ की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है वहाँ की आबो हवा में इतनी शायरी, इतनी क्रिएटिविटी है कि शायद वो सब आपने अपने आप में संभाली है। इरशाद साहब, आपका जन्म हुआ पंजाब में, तो पंजाब आपकी शायरी को पंजाब की सौंधी खुशबू, उर्दू की तरबियत और हिंदी का ज्ञान जो लखनऊ, जो बम्बई की कर्मभूमि में परोसा गया है, जहाँ की आबो हवा में इतनी उर्वरक है, खुद ही बम्बई की जो हवा है इतनी रचनात्मक है, तो इन सब से मिलके जो शायरी बनी तो हम दर्शकों की तो मौजा ही मौजा हो गई है, तो वो भी खालिस हिंदुस्तानी में। लेकिन आप अपनी प्राइमरी भाषा किसको कहेंगे? जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, लखनऊ के सारे ज़हीन और खूबसूरत और अच्छे लोग यहाँ मेरे सामने बैठे हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका आज आने के लिए। जो आपका सवाल है कि मैं अपनी प्राइमरी भाषा, जो जवाब दिया था मुझे लगता है मैं उन्हीं का जवाब रिपीट कर देता हूं तो पता चल जाएगा कि मेरी भाषा असल में मेरी भाषा क्या है, कि किसको मैं अपना कहूं, किसको कहूं बेगाना, किसको मैं अपना कहूं, किसको कहूं बेगाना, पंजाबी है अगर माँ मेरी, उर्दू मेरी माशूक है। क्या बात, वाह, इससे बढ़िया जवाब इस बात का नहीं हो सकता था। लेकिन इसमें बात एक ये हो गई कि पंजाबी माँ के साथ साथ उर्दू माशूक के साथ साथ एक हिंदी साथ में मेरे जन्म ली हुई, जिसे कहते हैं मेरे साथ चली हुई हिंदी भाषा भी है, जिसमें मैंने समकालीन कविता आज से तकरीबन कह लीजिए 20, 22, 25 साल पहले जब मैंने इस पे PhD की थी, समकालीन कविता पे बहुत कम सामग्री मिलती थी, तो समकालीन कविता मुझे लगा कि पंजाबी मुझे मेरी मिट्टी ने दे दी है और उर्दू मुझे मेरी विरासत में मिल गई है, तो हिंदी मुझे सीख लेनी चाहिए अच्छे से, ताकि मैं पूरी तरह से एक ज़बान का आदमी बन जाऊं, पूरी तरह से मुझे भाषाओं का पता चल जाए। ये जो सीखने की चाह होती है, ये मैं बात थोड़ा हटके कर रही हूँ कि हम लोग ने कहा इरशाद साहब से कि आज रात में हमारे साथ डिनर कीजिए, तो बोले मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नरेश सकीना जी से मिलने जाना है, क्योंकि हमारे शहर के नरेश जी शायद उनका शुमार अभी हिंदुस्तान के सबसे बड़े कवियों में है। तो ये जो जज्बा मुझे इरशाद साहब का दिखा कि मैं थोड़ा समय उनके साथ बिता लूँ, शायद कुछ सीख पाऊँगा,
तो बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े कलाकार होकर भी आप अपना थोड़ा सा समय हमारे वरिष्ठ कवि के साथ बिताना चाहते हैं। दोस्तों, जैसे एक कलाकार को उसकी इंटेलिजेंस एक बेहतर अदाकार बनाती है, तो मेरा मानना ऐसा है कि एक राइटर को, लिरिसिस्ट को उसका लिखना, पढ़ना, अध्ययन शायद एक बेहतर राइटर बनाता है। आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी, बहुत सही बात कही, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मैंने कल भी ये बात की थी कि एक इंसान अपनी जिंदगी में ज्यादातर एक तरीके की जिंदगी जीता है और एक तरीके से जी रहा होता है जिसमें बहुत ज्यादा उस तरह की संभावनाएं होती हैं जिस तरह का वो जीना चाह रहा होता है, जो उसकी चॉइसेस होती हैं, बिकॉज यू आर मेड बाय योर चॉइसेस, ऐसे कहा जाता है। लेकिन अगर मैं यही इसी जिंदगी को जीते जीते कोई और जिंदगी भी जीना चाहूं, तो क्या हल है मेरे पास? उसका क्या तरीका है? उसका तरीका ये है कि मैं किसी और राइटर का लिखा हुआ पढूं। जब मैं वो किताब पढ़ूंगा तो धीरे धीरे वो उस किताब में इन्वॉल्व हो जाऊंगा तो मुझे पता चलेगा कि गोरकी, अब मैं गोरकी हो गया हूं, मैं गोरकी की माँ पढ़ रहा हूं, जो उसकी मदर है, मैक्सिम गोरकी की, मैं वो किताब पढ़ रहा हूं, या मैं प्रेमचंद का गोदान पढ़ रहा हूं, या मैं बशीर बद्र की शायरी पढ़ रहा हूं, या मैं सलीम खतौलवी पढ़ रहा हूं, या रसूल हमजा तोप पढ़ रहा हूं, या काजू को पढ़ रहा हूं, या शिव कुमार बटालवी पढ़ रहा हूं। तो आप पढ़ते पढ़ते वो जिस तरह की जिंदगी उसने बयान की होती है, वो आपको, अच्छे राइटर की खासियत ये होती है कि वो आपके साथ 10 मिनट बिताता है, फिर बहुत देर आपको छोड़ता नहीं। अच्छा राइटर वो होता है, आपके साथ रहता है। अच्छे गीत वो अच्छे गीत होते हैं जो आपके साथ रहते हैं। मैं अक्सर ये भी बात कहता हूं कि अच्छे गीत हमारे सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। जब मन अच्छा हो तो हमें कोई गीत सूझ जाता है, हम अकेले में गुनगुना लेते हैं। मन उदास हो तब भी हमें कोई गीत सूझ जाता है, अकेले हों तब भी कोई गीत सूझ जाता है। हर जगह हमें हमारा दोस्त यानी गीत खड़ा हुआ मिल जाता है, हम उसकी उंगली थामते हैं, उससे बात करते हैं, थोड़ा मन हल्का हो जाता है। अभी इन्होंने बात की थी मीना जी ने कि हर एक तो गा तो जो लिखते हैं, क्या आप गाते भी हैं? गा लेता है हर एक आदमी। मैंने इन्हें कहा कि गा तो लेता है हर एक आदमी, पर हर एक गाने वाले को ऑडियंस नहीं मिलती। वो अकेला ही गाता है ज्यादातर। तो वो प्रोफेशनल गायक वो बन जाता है जिसको ऑडियंस मिल जाती है, जिसका गीत सुनने के लिए लोग पैसे खर्च करके सुनते हैं कि उसका कॉन्सर्ट हो रहा है, चलिए अभी उसका गीत सुनेंगे, उसकी गजल सुनेंगे। नहीं तो अगर कई बार ऐसा भी होता है, मेरे जैसे गाने वाला गाने लगता है तो फिर आदमी सोचता है कि पैसे ले लो यार, गाना तो सुन लो मेरा। आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए, जो पढ़ाई लिखाई की बात है, एक फिल्म आई थी करीब 10-12 साल पहले, उसमें एक गाना था। मैं ना चाहते हुए भी एक कंपैरिजन कर रही हूँ आपके कलाम का और किसी और का, उसके लिए माफी। तो ये एक रॉक स्टार है जो कि स्टेज पे है और वो गा रहा है, मेरी लॉन्ड्री का एक बिल, एक आधी पढ़ी नॉवल, एक लड़की का फोन नंबर, मेरे काम का एक पेपर। ये गीत भी काफी हिट हुआ था। लेकिन एक रॉक स्टार वो है जिसके लिए इरशाद साहब ने गीत लिखे थे और वो कहता है, ओ नादां परिंदे घर आजा, सौ दर्द बदन पे फैले हैं, हर कर्म के कपड़े मैले हैं, काटी चाहे कितना, परों से हवाओं को खुद से ना बचा पाएगा तू, तोड़ आसमानों को, फूंक दे जहानों को, खुद को छुपा ना पाएगा तू, कोई भी ले रास्ता तू है, तू में बसता, अपने ही घर आएगा तू, ओ नादान परिंदे घर आजा। ये फिल्म बहुत चली थी, ये गाना बहुत चला था। खास बात यह है कि इसको नौजवान पीढ़ी ने बहुत पसंद किया। तो आपका शुक्रिया कि आपने एक इतनी गहरी बात हमारे देश के नौजवानों को पहुंचाई। मतलब हमें अपने फ्यूचर में कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही अगर देश का नौजवान एक गहरी बात समझ सकता है। तो आप ये बताइए कि ये आप कैसे नौजवानों के दिल से ये आवाज कैसे पहुंचा देते हैं?
जी, रॉकस्टार की बात की तो जब हमने रॉकस्टार का एल्बम बनाया था 14 गाने थे, मतलब बड़ी देर के बाद कोई ऐसी फिल्म आई थी जिसमें इतने सारे गाने हों और वो गाने बिल्कुल इस तरह के हों जो जिसमें ये ध्यान ना रखा गया हो कि हमने गाना हिट करने की कोशिश करनी है। हमने सबसे पहला काम और मुझे लगता है सबसे अच्छा काम उस फिल्म में ये किया था कि हमने गाना हिट करने की कोई कोशिश नहीं की थी, हमने कनेक्ट बनाने की कोशिश की थी। गाना यहां से ना सुना जाए, गाना यहां से सुना जाए, और जब यहां से सुनी जाती है चीज तो वो वहां रह जाती है। दिल में एक बार जिसने जगह कर ली उसको वक्त लगता है वहां से निकलने में। तो नादान परिंदे हो या फिर से उड़ चला हो या कुन फाया कुन हो, ये सब जब हमने लिखे और बन गए गाने तो हमने सोचा कनिका जी कि ये उस ढर्रे के गाने नहीं हैं जिस ढर्रे के गाने उन दिनों चल रहे थे। आज से तकरीबन आप देखिए 10-11 साल पहले की बात हो रही है ये, अब तक ये गाने, ये एल्बम इस तरह से जिंदा है। तो हम डरे हुए थे कि पहला गाना कौन सा रिलीज किया जाए, लोगों को समझ में आएगा कि नहीं आएगा, नौजवान किस तरह से रिएक्ट करेंगे। पर मेरा अभी तक का तजुर्बा ये कह रहा है कि हमारी जो नौजवान पीढ़ी है वो शायद पिछली पीढ़ी से ज्यादा समझदार पीढ़ी है। उनको चीजों की बारीकी ज्यादा पता है, उनको वैल्यूज का वो जो होते हैं कि मुखौटेबाजी हो, जो जिसका एक तबका शिकार रहा है, वो मुखौटे हटा के देखना चाहते हैं, जो चीजें हैं उसी तरह से देखना चाहते हैं। अब सौदर्द बदन पे फैले हैं, हर कर्म के कपड़े मैले हैं, अगर ये बात है तो वो इसी तरह से देखना चाहते हैं। वो ऐसा नहीं है कि दिल दुख रहा है और मैं मुस्कुरा रहा हूं। अगर दिल दुख रहा है, दर्द है तो दर्द है, अगर तकलीफ है तो तकलीफ है, अगर खुश हूं तो खुश हूं। ये एक जिसे कहते हैं डायरेक्ट, इसी वजह से मैं कोशिश क्या करता हूं जब भी कोई गाना लिखूं, रोमांटिक गाना हो या कोई और गाना हो, मैं कोशिश ये करता हूं कि जो असल एहसास है उस तक पहुंचा जाए। असल एहसास तक जब हम पहुंच जाते हैं तो वो दिल के तार झंझना देता है और आपको पता चलता है कि ये बात सच है। आप यकीन मानिए हम में से बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लगभग सभी लोगों को ये पता होता है कि सही क्या है, गलत क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, ये पता होता है हमें, लेकिन उसके बावजूद हम बहुत सारी चीजें नजरअंदाज कर देते हैं। वो भी एक कला है नजरअंदाज कर देना, लेकिन उस कला का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कई बार सही भी नहीं रहता, बहुत सारी चीजें नजरअंदाज कर दी जाएं तो हमने ये रॉकस्टार करते हुए या कोई और फिल्म करते हुए रियलिटी के करीब, अब जैसे मैं तमाशा फिल्म का गाना है, अगर तुम साथ हो, तेरी नजरों में हैं तेरे सपने, तेरे सपनों में नाराजी, मुझे लगता है बातें दिल की होती लफ्जों की धोखेबाजी, तुम साथ हो या ना हो क्या फर्क है, बेदर्द थी जिंदगी बेदर्द है अगर तुम साथ हो। तो ये एक रियलिटी है, ये एक सच है जो बयान करने की कोशिश है कि इस तरह, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें मोहब्बत नहीं करता हूं, पर यह भी सच है। अब जहां मोहब्बत है वहां लड़ाई का होना भी सच है, मनमुटाव का होना भी सच है, वो भी उसी जिसे कहते हैं द अदर साइड ऑफ द कॉइन है। या मांगा जो मेरा है जाता क्या तेरा है, मैंने कौन सी तुझसे जन्नत मांग ली, कैसा खुदा है तू बस नाम का है तू, रब्बा जो तेरी इतनी सी भी ना चली। इसमें तो आपने चैलेंज कर दिया रब को। मुझे ऐसा लगता है कि खुदा के साथ हर इंसान का अपना रिश्ता होता है, जैसे हर बच्चे का अपनी माँ के साथ होता है। एक माँ के अगर 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, हर बच्चे का अपना रिश्ता होगा, हर बच्चा अपने तरीके से लड़ता होगा, हर बच्चा अपने तरीके से अपनी बात मनवाता होगा या जिद करता होगा। तो माँ भी पालती है, माँ भी पैदा करती है, खुदा भी पालता है, खुदा भी पैदा करता है। तो जो रिश्ता माँ के साथ होता है वो खुदा के साथ क्यों नहीं हो सकता? जब हम माँ से नाराज हो सकते हैं, उससे सवाल जवाब कर सकते हैं, तो हम खुदा से क्यों नहीं सवाल जवाब कर सकते?
तो इसलिए वो चैलेंज, और खासकर जब आदमी उस शिद्दत में, उस एहसास की शिद्दत में हो, वो फीलिंग मोहब्बत की हो या कोई और फीलिंग हो, जब उस शिद्दत में हो इंसान, तब तो सवाल करने का हक उसे ज्यादा मिल जाता है। तो इसलिए मैंने वो चैलेंज नहीं किया, मैं उसमें ये कहना चाह रहा था कि ये तो मेरा हक है, ये तो मुझे दे दो। मैं जन्नत थोड़े ना मांग रहा हूँ, जन्नत मांगने के लिए मुझे पता है बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत इबादत करनी पड़ेगी, तब कहीं जाके मिलेगी। अब मैं तो अपनी महबूब मांग रहा हूँ, तुमने तो ऐसे कुन कह के दुनिया बना दी थी, अब तुम कह दो कि अच्छा ये इसको दे दो तो मिल जाएगी मुझे। मैं वो उस बेचारगी के साथ वो बात कर रहा है। आपने जो ये कहा कि नौजवान पीढ़ी है और जिस तरह से जो बात कहनी चाहिए वैसी कहनी चाहिए, उसको में कोई दिखावा, कोई ढांपना नहीं बात को। तो ये पहले जो फिल्में बनती थी, गाने बनते थे, एक आइडियल कैरेक्टर होता था कि ही इज फ्लॉलेस। तो चाहे वो जॉर्डन हो या फिर वो इसका वेद हो या वीर हो, हाँ, तो दोनों ही फ्लॉड कैरेक्टर्स हैं। और उनके मन की बात जिस तरह से आपने कही है, अगर तुम साथ हो या रॉकस्टार के गानों में, वो इट्स नॉट जस्ट योर वर्ड क्राफ्ट, आपकी जो भावनात्मकता है वो भी, मतलब मुझे तो लगता है कि ऐसे गाने शायद ही किसी ने लिखे हैं आज के दौर में। तो एक बार फिर आपका शुक्रिया कि हमारी नौजवान पीढ़ी को उनकी फाइनल फीलिंग्स से मिलवाने का। नादा परिंदे घर आजा, वो एक शायद तलाश है या मृग तृष्णा है, तो आप कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे अंदर ही है, उसे उसी में ढूंढो अपने आप में। बेसिकली बात इस तरह से होती है, कई बार हम अपनी फीलिंग्स को नकारने लगते हैं। हमें पता होता है कि क्या हो रहा है, कई बार हमें कुछ हो रहा होता है, हमें पता नहीं चलता क्यों हो रहा है। वो क्यों की तलाश, अगर मान लीजिए मुझे बेचैनी हो रही है किसी खास मोमेंट पे, वो मुझे बेचैनी क्यों हो रही है, हम इतना तक तो पहुंच जाते हैं कि मन उदास है, मन बेचैन है। अब अगला इसका स्टेप कह लीजिए ये है कि मन क्यों उदास है, मन क्यों बेचैन है। और मान लीजिए वो पता भी चल जाए तो कई बार हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते कि नहीं नहीं इस वजह से तो नहीं हो सकता, पर होता है, डिनायल में रहते हैं हम। तो वो हमारे जो नौजवान दोस्त हैं, तो उनका जो एक कह लीजिए कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड होता है एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर एज में, उसको एड्रेस करने की कोशिश मैं हमेशा करता हूं अपने गानों में। हम लोगों ने टैगोर को पढ़ा है, शैलेंद्र जी के गाने सुने हैं या गुलजार साहब को। तो नारी मन को इन लोगों ने, या शरद चंद्र, उन्होंने नारी मन को जिस तरह से समझा है और उसके बारे में लिखा है, उसी तरह से इरशाद साहब ने भी उसी श्रेणी में काम किया है। तो ये बताइए कि आप, मतलब हम लोग से हमेशा सुनते आए कि भाई नारी मन को तो भोलेनाथ भी नहीं समझ पाए, आप इतना अच्छा कैसे समझ के। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊंगी, चमेली, शी इज अ स्ट्रीट वॉकर, एंड उनके 2 गाने हैं, भीगी हुई शाम। उस गाने में तो जो सेंस ऑफ लॉस है, द इमिनेंट, द हार्ट ब्रेकिंग इमिनेंट पार्टिंग है, उसको कितनी खूबसूरती से इरशाद साहब ने लिखा है। फिर सजना वे सजना, जो समर्पण की भावना है, वो मुझे लगता है बिहारी की कविताओं में मिलती है कि जिस रूप में भी हूँ मैं हूँ, और अधिकार से वो कह रही है। तो आप कैसे समझ लेते हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि कैसे मैं नारी मन को समझ लेता हूँ। असल में जब मैं गाने लिखने बैठता हूँ तो मैं वो हो जाता हूँ जिसके लिए गाने लिखता हूँ। वो वेद तमाशा की मीरा हो या जब वी मेट की हीर हो, आप यकीन मानिए जब मैं उनके लिए गाने लिख रहा होता हूँ तो मैं ही मीरा होता हूँ, मैं ही हीर होता हूँ। और जब आप वो हो गए जो आप, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, मीरा में या हीर में क्या फर्क है, या रॉकस्टार में जो हीर है उसमें और मुझ में क्या फर्क है? फर्क सिर्फ ये है कि वो हीर या वो मीरा पोएट नहीं है, उस कहानी में वो शायरा नहीं है। अगर शायरा होती तो वो वही लिखती जो मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं।
क्योंकि उसका किरदार कवित्री का नहीं है, तो इसलिए वो नहीं लिख सकती। अब मैं उसके बिहाफ पे उसकी बात कैसे करूं? अब मैं चमेली के बिहाफ पे चमेली की बात कैसे करूं? जैसे बताया कनिका जी ने कि वो स्ट्रीट वॉकर है, तो मैं लिखूंगा कि वो रोशनी, वो आग है, या फिर कोई चिराग है जिसे धीरे धीरे जलना है, जिसे इस तरह ही चलना है, किसी मोड़ पर वो आज भी कंदील सी जलेगी, शहर की धूप में बेवक्त ही ढलेगी। या इन्होंने कहा, सजना वे सजना तुझे भर लूं अपनी आंखों में, फिर इन आंखों को खोलूं ना, तुझे घोलूं अपनी बातों में, फिर इस दुनिया से बोलूं ना। तो ये जो एक पोजेसिवनेस होती है, और ये होती है, आप यकीन मानिए ये होती है, वो जो पोजेसिवनेस होती है, वो जो शिद्दत होती है मोहब्बत की, उसको, या अभी बाहर हम हाय चकाचक है तू की बात कर रहे थे, तो वो भी एक है, वो भी एक हिस्सा है। या पटाखा गुड्डी तू तो पाक रब का बांका बच्चा, राज दुलारा तू ही, मालिक ने जो चिंता दी है दूर करेगा वही। तो ये के जुगनी रुख पीपल का होई, जिसको पूजे तो हर कोई, जिसकी फसल किसे ना बोई। वो लड़की जो है वो वीरा उस पिक्चर में, वो पीपल के रुख की तरह हो गई है, पीपल के रुख की तरह हो गई है, जिसकी हम पूजा तो करते हैं लेकिन हम उसकी फसल नहीं लगाते। जुगनी रुख पीपल का होई, जिसको पूजे तो हर कोई, जिसकी फसल किसे ना बोई, घर भी रख सके ना कोई। और घर में भी हम पीपल नहीं लगाते, दीवार पे पीपल का जरा सा एक टहनी निकलती है, हम निकाल देते हैं उस टहनी को, दीवार में दरार आ जाएगी। जुगनी रुख पीपल का होई, जिसको पूजे तो हर कोई, जिसकी फसल किसे ना बोई, घर भी रख सके ना कोई। रास्ता नाप रही मरजानी पट्टी, बारिश का है पानी, बारिश का पानी द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। बारिश का पानी सबसे शुद्ध पानी। बारिश का है वो तो बारिश का है पानी, जब नजदीक जहान के आनी, जुगनी मैली सी हो जानी। जैसे ही वो बारिश का पानी दुनिया के नजदीक आता जाता है, हम कहते हैं गंदा बारिश का पानी है, अंदर आ जाओ भीग जाओगे। तो ये एक्सप्रेशन, ये इस तरह की बातें तब मुझे समझ में आती हैं जब मैं भले ही टेबल पे बैठा होता हूं अपने, पर उस वक्त मैं वीरा होता हूं, उस वक्त मैं मीरा होता हूं, उस वक्त मैं हीर होता हूं, मैं उनके बिहाफ पे उनका नुमाइंदा होता हूं, मैं उनकी बात कर रहा होता हूं। एक और कैरेक्टर की बात करेंगे, अंतरा। शब्द में ऐश्वर्या राय ने बहुत ही अच्छा किरदार निभाया था अंतरा का। वो पूरी फिल्म ही एक, इट वाज लाइक अ वर्स। तो उसके गाने, शी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ स्ट्रीट वॉकर और द चर्पी हैप्पी गर्ल गीत ऑफ जब वी मेट। ये एक एजुकेटेड वेरी इवॉल्व्ड प्रोफेसर है कॉलेज में। अब इनके गाने आपने शोलों से कैसे लिख लिया, ये भी बताइए। जी, वो भी जैसे मैंने कहा कि कैरेक्टर के हिसाब से मैं कैरेक्टर हो जाता हूँ। और ऑन द लाइटर नोट मैं अक्सर ये भी बात करता हूँ कि ये रणबीर कपूर हुए या सलमान भाई हुए या शाहरुख भाई हुए, ये तो हीरोइंस के साथ बाद में गाने गाते हैं, मैं तो अपने टेबल पे बैठा बैठा पहले ही गाने गा लेता हूँ इनके साथ। तो वो जो स्क्रीन पे आपको दिखाई देता है, वो उसकी कार्बन कॉपी होता है जो मैं ऑलरेडी कर चुका होता हूं वहां अपने टेबल पे। तो जब आप कैरेक्टर के लिए किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में गाना लिखते हैं, अब जैसे आपने पहले भाषा की बात की थी, भाषा भी इस तरह की भाषा किसी एक जगह का कैरेक्टर है। जैसे अगर हमने कुन फाया कुन लिखा कि मैं तो जग को ना भाया, तूने गले से लगाया, सच तू ही है खुदाया, हक तू ही है खुदाया। वहीं हमने ये भी लिखा, तूने मारी एंट्रियां तो दिल में बची घंटियां, या मेरे डॉगी को तो, तेरे डॉगी को मुझ पे भौंकने का नहीं, तू मेरे अगल बगल है। ये कैरेक्टर की बात है। एक कंप्लीट राइटर वो होता है जिसकी कलम जब चले तो उसी परफेक्शन के साथ चले, हर कागज पे, हर किरदार के लिए और हर वक्त।
जो अपनी मर्जी से वो लिख सके जो असल में लिखा जाना चाहिए उस मोमेंट पे या उस किरदार के लिए, वो असल मुझे लगता है एक अच्छा पुख्ता राइटर होता है। तो ये शोलों सी तेरी आंखों की ये रोशनी, ये भी किरदार के तहत लिखा गया गाना है। या जबान की अगर हम बात करें, जैसे मैंने पटाखा गुड्डी का एग्जाम्पल दिया, उसमें हल्का सा एक पंजाबी का आपको टच मिलेगा। तो ये थोड़ा सा भाषा का भी हम लिहाज रखते हैं कि लिखते हुए वो, क्योंकि उस दौरान जब ये फिल्म के दौरान गाना आता है तो वो लड़की वीरा पंजाब के एरिया में होती है। तो जैसे हम किसी एरिया पे में होते हैं और कुछ दिन बाद, थोड़े 1-2 दिन बाद हमें हल्का हल्का रंग चढ़ जाता है, उस इलाके का रंग चढ़ जाता है, जबान का रंग चढ़ जाता है, तो वो रंग उसमें दिखाई देता है। फिर जैसे मैंने ये बताया कि तूने मारी एंट्रियां और दिल में बजी घंटियां, ताड़ा ताड़ी करना, तो आनंदिता जी समझेंगी, क्योंकि वो कैलकटा के वो जो गुंडे फिल्म का गाना था वो कैलकटा में बेस्ड पिक्चर है। तो मैंने थोड़ा सा हल्का सा बंगाल का टच नहीं, एक कहीं कहीं आपको लगे कि ओके ये इस प्रेमाइस में लिखी हुई, इस प्रेमाइस में बनी हुई पिक्चर है। ये अक्सर हम करेक्टर की वजह से ऐसा होता है। तो इरशाद साहब कह रहे हैं कि राइटर, अच्छे राइटर की क्या पहचान होती है? एक पहचान ये भी है कि जो सजना वे सजना गाना है, जो अनकंडीशनल लव है, जो एब्सोल्यूट सरेंडर है, तो कभी कभी मुझे तो ऐसा लगता है कि काश मुझे भी कोई ऐसा लवर होता, मुझे भी ऐसी फीलिंग होती उसमें एक बात इरशाद साहब की कहीं लिखी हुई मैंने पढ़ी है, और वो क्योंकि हम बात कर रहे थे पार्टिंग की और हार्ट ब्रेक की, तो आप कहते हैं कि कुछ रिश्तों का नमक ही दूरी होती है, ना मिलना भी बहुत जरूरी होता है। ये कैसी बात है? ये बात छुई दिल को कि जरूरी है कि आप दूर रहें, कुछ डिस्टेंस रहें, और वही रिश्तों का नमक है। जी, मुझे ऐसा एहसास हुआ होगा, बिना एहसास हुए कुछ लिखता नहीं हूँ कुछ रिश्तों का नमक ही दूरी होता है, ना मिलना भी बहुत ज़रूरी होता है। असल में मैं जो लिखने की कोशिश करता हूँ, जैसे यही आपने बात की, वो जो एहसास, जिस एहसास से किसी ख़ास मुकाम पे आप गुजरते हैं, उस एहसास को अपने पास रखने का मेरे पास आसान तरीका ये है कि मैं उसको लफ्ज़ों का जामा पहना दूँ, मैं उसको गजल का मिसरा बना दूं, मैं उसको नज़म का बंद बना दूं, या गीत का मुखड़ा बना दूं। तो ये असल में कोशिश एक रहती है। जैसे मैं आपको एक और गजल का एक मतलब सुनाता हूं मैं आपको कि आग का दरिया तो मोहब्बत इश्क को कहते हैं, कह चुके हैं, शेर आ चुका है, आग का दरिया है और डूब के जाना है, आप सबने सुना होगा। आग का दरिया धीरे धीरे कतरा भी हो सकता है, आग का दरिया धीरे धीरे कतरा भी हो सकता है, साथ तुम्हारे रहने वाला तन्हा भी हो सकता है। आग का दरिया धीरे धीरे कतरा भी हो सकता है, साथ तुम्हारे रहने वाला तन्हा भी हो सकता है। यार की आदत चाहत में बदली बदली हो सकती है, यार की आदत चाहत में बदली बदली हो सकती है, यार की आदत चाहत में ही बदला भी हो सकता है। क्या बात है कि पाकीज़ा है आप बजा है, लेकिन दुनिया फिर दुनिया है। पाकीज़ा है आप बजा है, लेकिन दुनिया फिर दुनिया है। आपको पहले और किसी ने सोचा भी हो सकता है। तो ये जिस तरह की फीलिंग होती है, जिस तरह का एहसास होता है, वो लफ्जों में ढालने की कोशिश होती है। तो रुबानियत की दुनिया से निकल के अगर आपके दूसरे तरह के कलाम पे आए, सूफियाने कलाम पर आए, अभी हमने बात करी आज दिनचर्या की, और लेकिन जो सबसे ज्यादा मेरे दिल को जो छूता है वो कुन फाया कुन, और उसपे एक जगह आप कहते हैं कि ओ हो मुझ पे करम सरकार तेरा, अरज तुझे कर दे मुझे मुझसे ही रिहा, अब मुझको भी हो दीदार तेरा, कर दे मुझे मुझसे ही रहा। तो ये कौन सी कैद है, किस रिहाई की बात आप कर रहे हैं? जी, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कर दे मुझको मुझसे ही रहा, हो मुझको भी दीदार मेरा। असल में
मुझे ऐसा लगा या उस जॉर्डन को ऐसा लगा कि जब बच्चा पैदा होता है या जब वो पैदा हुआ या जब मैं पैदा हुआ तो एक तरह की तरबियत हमें शुरू से मिलनी शुरू हो जाती है। अच्छा, अभी खाना ऐसे खाते हैं, टेबल मैनर्स ऐसे होते हैं, अच्छा घर पे आए ऐसे करते हैं, झूठ नहीं बोलना, सच बोलना बहुत बड़ा गुण है इंसान का। फिर जब आप बच्चा बाहर जाता है और इस तरह की जो कह लीजिए हमारी प्रूनिंग होती है, एक पौधे की प्रूनिंग होती है, उस प्रूनिंग में जो रियलिटी ऑफ द पर्सन होती है वो कहीं मिस हो जाती है, वो कहीं खो जाती है। और कई बार बाहर जाके उसको लगता है जो मुझे सिखाया गया है, मुझे तो कहा गया है कि सच बोलना बहुत अच्छी बात है, पर यहां तो कोई सच बोल ही नहीं रहा, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। और इसी फिल्म में जो आपने रॉकस्टार की बात की, इसी फिल्म में वो कहता भी है, क्यों सच का सबक सिखाए अगर सच सुन भी ना पाए। अगर सच सुनने की ताकत नहीं है तो मुझे क्यों बताया जाता है कि मुझे सच बोलना चाहिए। तो ये एक कह लीजिए एक अपने आप से जो उसके ऊपर एक मुलम्मा चढ़ जाता है, जनरली हमारे ऊपर एक मुलम्मा चढ़ जाता है दुनियादारी का, उससे हटने की कोशिश, उसको तोड़ने की कोशिश, उससे अलग जाने की कोशिश होती है। और इस गाने के दौरान एक किस्सा हुआ, ये आपने कुन फाया की बात की, ये दिल्ली में हम शूट कर रहे थे इस गाने को, दिल्ली में शूटिंग चल रही थी रॉकस्टार की, और मैं गाना ये लिख रहा था कुन फाया कुन वहीं दिल्ली में। और लिखते लिखते गाना लिखा, तो लिखने के बाद उन्होंने कहा कि जाइए, इम्तियाज बोले कि हाँ आप रिकॉर्ड कर लीजिए चेन्नई में जाके रहमान साहब के साथ। और रहमान साहब के पास गया और गाना रिकॉर्डिंग के लिए हमने दिखाया ये गाना है, और हमने कहा कि इम्तियाज बोल रहे थे जो वो डायरेक्टर हैं पिक्चर के कि ये गाना बहुत लंबा है, इसको थोड़ा छोटा करना चाहिए। तो रहमान साहब बोले हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, अगर लंबा लगा तो फिर देखेंगे। अब रात को तकरीबन 12 बजे अक्सर होता है कि डबिंग शुरू होती है वहां पे, और जब डबिंग शुरू होती है और मोहित चौहान माइक पे हैं और वो मोमबत्ती जलती है जो अक्सर जलती है उनके यहाँ पे डबिंग के लिए, तो एक अलग सा स्टूडियो के अंदर माहौल बनना शुरू हो जाता है, एक अलग कैफियत, एक अलग रोमानियत शुरू हो जाती है, जिसको क्या कहना चाहिए, इंतहा रोमानियत की कहना चाहिए या सूफीज्म की कहना चाहिए, वो एक माहौल बन जाता है। और उस माहौल से निकल के मैं इम्तियाज को फोन करता हूँ कि यार कुछ हो रहा है, कुछ बहुत ही अच्छी बात हो रही है, पर मुझे अभी पूरी तरह पता नहीं है कि कौन सी बात हो रही है और कहाँ पहुंचेगी। अगर तुम्हारी कल दोपहर बाद की शिफ्ट है तो तुम सुबह की पहली फ्लाइट पकड़ के या जो भी मिलती है चेन्नई आ जाओ। और वो आ गया, और तब हमारी रिकॉर्डिंग चल रही थी अभी, और गाना कंप्लीट हुआ। कंप्लीट होने के बाद सुना, और मेरे ख्याल से बहुत लंबे अरसे के बाद, जैसा मैंने कहा कि इतना 14 गाने, और ये कुन फाया कुन, उनमें भी तकरीबन 8 मिनट लंबा गाना, और आप सुनने लगते हैं, सुनने बैठते हैं तो आपको वक्त का एहसास नहीं होता कि ये लंबा हम तो लूप पे ही सुनते हैं उस गाने को, मुझे लगता है कि अभी और सुनना है, बिकॉज इतनी शांति है उस गाने में, अलग ही बात है उसकी। तो एक सवाल आपसे, अभी इम्तियाज साहब की बात हो रही थी, एक आप किस्सा बड़ा मजेदार सुनाते हैं कि आप लोग मरीन ड्राइव पे घूम रहे थे रात में, एक बार अगर जी, वो भी बड़ा मजेदार बात। असल में होता क्या है कि जब आदमी किसी कोशिश में होता है तो उसको लग रहा होता है मैं कोशिश कर रहा हूं, पर हर मोड़ पे कोई ना कोई कहानी खड़ी होती है, उसका इंतजार कर रही होती है कि तुम आओ मैं तुम्हारे साथ चलूं। तो ये कहानी भी उसी तरह की कहानी है। बात उन दिनों की है जब सोचा ना था, जो इम्तियाज की पहली पिक्चर थी वो नहीं उन्होंने डायरेक्ट की थी और मैंने भी कोई गाना नहीं लिखा था। वो पिक्चर बनाने की सोच रहे थे और मैं गाने लिख रहा था। ये उन दिनों की भी बात है जब असल में वो भी इम्तियाज अली नहीं था और मैं भी इरशाद कामिल नहीं था। तो हम अक्सर नए नए कॉफ़ी शॉप्स का एक दौर था, बरिस्ता और ये कैफ़े कॉफ़ी डे नए नए खुले थे, और हमें लगता था क्योंकि हम स्ट्रगलर्स थे कि बहुत महंगी कॉफ़ी मिलती है यार, इतनी महंगी थोड़ी होती है कॉफ़ी। और कॉफ़ी शॉप के बाहर खड़े होके हम अक्सर एक दूसरे से
कम से कम 2-3 मिनट हाल ही पूछते रहते थे, और क्या हाल है, अच्छा है, और तू सुना, बढ़िया है, कैसा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, बाकी सब ठीक, बाकी सब ठीक, तो ठीक है। इन सवालों का मतलब ये होता था कि अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तू बोल के अंदर बैठ के बात करते हैं, अगर मेरे पास होते तो मैं बोल देता कि अंदर बैठ के बात करते हैं। तो उन दिनों भी ऐसे ही वर्सोवा बीच पे हम कॉफी शॉप के बाहर मिले, और मिले तो इसी तरह के सवाल जवाब हुए। तो अल्टीमेटली सवाल जवाबों के बाद ये हुआ फैसला कि चलिए वर्सोवा बीच पे घूमते घूमते बात करते हैं। तो हमें भी समझ में आ गया वो किस तरह से आए हैं, और उनको भी समझ में आ गया कि मैं किस तरह से आया हूं। तो वर्सोवा बीच पे हम घूम रहे थे और सोचा ना था कि टाइटल ट्रैक पे बात कर रहे थे, कभी दिल के करीब, तुम्हें मेरे नसीब यूं लाएंगे, सोचा ना था। अब बात करते करते हम 8 बजे शुरू हुए, फिर वो आपको पता है नया नया पैशन, और पहली पिक्चर इम्तियाज की, पहली पिक्चर मेरी, पहली पिक्चर अभय देओल की, पहली पिक्चर आयशा टाकिया की, इतने लोग पैशन चल रहा है, अरे नहीं वहां ऐसे, अरे नहीं वो बिल्कुल नहीं, कभी तन्हा बैठे बैठे यूं मैं भी तो गुम हो जाती हूँ, ये करेक्ट है, अच्छा नहीं वहां पे तुम ऐसा क्यों नहीं कर लेते, अच्छा मैं इसको यहाँ फिल्माना चाहता हूँ। करते करते तकरीबन कनिका जी 12-1 बज गया। 7-8 बजे की डिस्कशन में 7-8 बजे से डिस्कशन शुरू हुई। अब ये डिस्कशन शुरू हुई और चलती गई, इतने में सामने से 2 पुलिस वाले आ गए। पुलिस वाले आ गए, उन्होंने कहा हाँ जी क्या कर रहे हो, कहते जी हमने कहा जी गाने पे डिस्कशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा चलो पुलिस स्टेशन वहां करना, हमने कहा चलो। तो हम पुलिस स्टेशन चले गए। पुलिस स्टेशन चले गए तो उन्होंने कहा आपको पता है यहाँ कल ही किसी का मर्डर हुआ है। हमने कहा जी हमें नहीं पता। अच्छा तो फिर गाने में ऐसा होता है आगे, हम वहां बैठ के शुरू हो गए वहीं पुलिस स्टेशन पे। तो उतनी देर में उनका जो चाय पिलाने वाला एक मुंडू सा होता है वो आ गया। तो उन्होंने पूछा चाय पियोगे, हमने कहा पी लेंगे। तो हमने चाय भी पी ली उनसे। तो थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा कि यार इनको मैं ले भी आया हूं, इनको पता भी है ये पुलिस स्टेशन में बैठे हुए हैं और डिस्कशन एज इट इज इनकी चलती जा रही है। तो उन्होंने कहा एक मिनट भाई साहब आप कौन हो? मैंने कहा जी मैं इरशाद कामिल। ओके तो क्या करते हो आप? मैंने कहा जी मैं गाने लिखता हूं। ओह अच्छा, तो कौन सी पिक्चर में गाना लिखा है आपने? मैंने कहा अभी पिक्चर में लिखा नहीं है, लिखूंगा, आ रहा है मेरा गाना। तो उन्होंने इम्तियाज से पूछा आप? मैं जी इम्तियाज अली। आप क्या करते हैं? मैं डायरेक्टर हूं जी। कौन सी पिक्चर डायरेक्ट की है? की नहीं जी अभी कोई, मैं करूंगा अभी पिक्चर डायरेक्ट। तो उनको समझ में आ गया कि हम किस तरह के लोग हैं और क्या बात कर रहे थे। तो चाय वाय पिला के उन्होंने बड़ी मोहब्बत के साथ हमें वहां से विदा कर दिया। इरशाद साहब, हर वक्त में हर नस्ल में कुछ ऐसे कवि कुछ शायर होते हैं जो कि उस जनरेशन को काफ़ी प्रभावित करते हैं। तो जैसे कि हम लोग अभी तक साहिर साहब, शैलेंद्र साहब, कैफी आजमी, जावेद अख्तर, गुलजार साहब, इन लोगों से इस नस्ल के राइटर्स वगैरह प्रभावित रहते हैं। ऐसे कौन से राइटर्स हैं जिन्होंने आपको मुतासिर किया है? फैज एक है ये मुझे पता है, और आपने कुछ लिखा भी है ऐसा जो कि कुछ फैज साहब की गजल है, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। असल में क्या है, मुझे ऐसा लगता है जब आप किसी एक पर्टिकुलर इंसान से प्रभावित होते हैं तो आपका उसका असर आपकी लिखतों पे, आपके लेखन पे आता रहता है। इसका मुझे सबसे अच्छा तरीका ये लगता है कि आप बहुत सारे लोगों के फैन हो जाएं। जब आप बहुत सारे लोगों के फैन हो जाते हैं तो किसी एक का आप पे असर नहीं आता, आपका अपना असर बल्कि निखरता है उससे। तो मैं फैज साहब को भी पढ़ता हूं जैसा आप जानती ही हैं, और जितने मुझे फैज साहब अच्छे लगते हैं उतने ही मुझे बशीर बदर भी अच्छे लगते हैं, वसीम बरेल भी अच्छे लगते हैं, उतने ही मुझे सलीम खतौल भी अच्छे लगते हैं, खुमार बाराबंक भी अच्छे लगते हैं, उतने ही मुझे सुरजीत पात्र भी अच्छे लगते हैं, शिव कुमार बटालवी भी अच्छे लगते हैं, मुझे बालमनी अम्मा भी अच्छी लगती हैं, मुझे जापान के काजू को भी अच्छे लगते हैं, मुझे रशियन रसूल हमजा तो भी अच्छे लगते हैं, मुझे यूजीन ओनील भी अच्छे लगते हैं। तो मैं सबको जो मिले मैं उनको पढ़ लेता हूँ, और जो मुझे अच्छा लगे उसको मैं दोबारा तिवारा पढ़ता रहता हूँ, और कई बार वही किताब बार बार पढ़ता हूँ।
किताब, मुझे ऐसा लगता है कि एक बार आपने एक गजल पढ़ ली या एक कहानी पढ़ ली तो कुछ और, एक बार तो आपको एक बात समझ में आई, लेकिन कुछ होता है जो आपकी पकड़ से छूटा होता है, तो दोबारा पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि अरे इसकी तो ये भी एक बानगी निकलती है, इसका ये भी मतलब निकलता है। और वो जैसे अच्छा, जैसे आपने बिहारी की बात की थी, हिंदी के कवि बिहारी आप जानते ही हैं, तो उनके दोहों में अक्सर ये बात होती थी, एक तो लफ्जों का, जैसे हिंदी में श्लेष अलंकार कहते हैं, वो इतना ज्यादा इस्तेमाल करते थे श्लेष अलंकार का, एक ही लफ्ज अलग अलग अर्थ में इस्तेमाल करते थे। जैसे तोपे बारू उर्वशी, सुनो राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी, तू है उर्वशी समान। अब इसमें 3 बार उर्वशी का इस्तेमाल हो गया, लेकिन तीनों बार अलग अलग तरीके से इस्तेमाल हुआ उर्वशी का। तो इसी तरह की एक, जिसे कहते हैं फैज आपको कुछ और बता के जाते हैं, यूजीन ओनील आपको कुछ और बता के जाते हैं, कीट्स आपको कुछ और बता के जाते हैं, निराला ने आपको कुछ और बताया है, बिहारी कुछ आपको बता के जाते हैं। तो ये सबसे जिसे कहते हैं मुतासिर, या सबको पढ़ने से मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको यही कि एक मेरा फिल्म थी एक्शन रिप्ले, उसमें एक गाना था जिसकी बहुत ही साधारण सिंपल सी लाइन थी, अब तेरी सोच में रहता हूं मैं। अब ये वैसे बहुत ही आसान सीधी सिंपल बात है, अब तेरी सोच में रहता हूं मैं, यानी मतलब ये हुआ कि मैं जो हूं तो मैं सोचता रहता हूं, ये एक आसान मतलब है उसका। लेकिन आप दोबारा सुनेंगे यही गाना तो असल में कहा यह गया है कि अब तेरी सोच में रहता हूं मैं, कि अब तू मुझे सोचती रहती है, तेरी सोच में मैं रहता हूं। वैसे मैंने पहले दूसरा वाला ही अर्थ समझा। हाँ, तो ये और भी अच्छी बात है, ये और भी अच्छी बात है कि ये जब एक ही मिसरे की इस तरह से बानगियां निकलती हैं, इस तरह से अर्थ निकलते हैं, तो वो आपको खूबसूरत भी लगते हैं। और रही गीतकारी में मुतासिर होने की बात जो आपने कही, बाकी तो मुझे साहिर भी अच्छे लगते हैं, गीतकारी में शैलेंद्र भी अच्छे लगते हैं, मज्जू साहब भी अच्छे लगते हैं, तो इस तरह से पढ़ता भी हूँ। ऐसी कौन सी नज्म है, कौन सा गीत है किसी और शायर का जो आपको लगता है काश ये मैंने लिखा होता? जैसे लता जी है, उनको एक मलाल था कि साहब बीवी गुलाम का गीता दत्त का गाना पिया ऐसो जिया में समाये गयो रे, उन्होंने 1-2 बार कहा कि काश मैंने वो गाया होता। क्या आपको लगता है कभी कोई चीज आपने लिखी होती? जी, मुझे बहुत ऐसा एहसास होता है कि मुझे लिखना चाहिए था, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। ये अक्सर मुझे इतना खूबसूरत गाना लगता है, और जिस तरह की ये असल में गजल है, आप जानते ही होंगे, तो ये इसमें जो कुछ कहा गया है, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया उसे मैं भुलाता चला गया। ये गाना मुझे अक्सर लगता है कि ये मुझे लिखना चाहिए था, साहिर साहब ने पहले लिख दिया ये। लेकिन इस गाने में भी देखिए, जो अभी आपने पिछले गाने में बात करी ना, दिस कैन बी अ पर्सन सॉन्ग हु इज वेरी श्योर ऑफ हिमसेल्फ कि भाई जो भी है मैं निपट लिया उसको। एक बात ये भी है कि इट्स अ लूजर सॉन्ग, कि ये क्या बात हुई, अरे चैलेंज लेते, अपने हिसाब से जीते जिंदगी। तो इस गाने में भी दोनों रुख है, आपका परसेप्शन कैसा है उस पर डिपेंड करता है ये। बिल्कुल यही मैंने कहा कि अच्छे लेखन की यही खासियत होती है कि इंसान अपने तरीके से उसका मतलब निकाल लेता है। आप लोग को शायद मालूम नहीं है, इरशाद साहब का एक बैंड भी है, उसका नाम है इंक बैंड। एक तो नाम बहुत खूबसूरत है, इंक बैंड। ऐसी उसमें पश्मीने सी गजलें इरशाद साहब पढ़ते हैं और बड़ा मखमली म्यूजिक है। हमारे कई लोग हैं जिन्होंने उसको सुना है, पहले लखनऊ में यहाँ पर बैठे हैं, और उसके बारे में कुछ बताइए हमें। जी, असल में बैंड्स का ताल्लुक जनरली होता है तो म्यूजिक के साथ होता है, जैसे रॉक बैंड होता है या हिप हॉप बैंड होता है या सूफी बैंड भी आजकल काफी जिसे कहते हैं चलन में है लफ्ज। लेकिन पोइट्री बैंड हिंदुस्तान का पहला वाहद पोइट्री बैंड है ये, जिसमें पोइट्री ड्राइविंग सीट पे है।
जिसमें जो बात कही जा रही है उसका महत्व ज्यादा है, और साथ में अगर वायलिन बज रही है और गिटार बज रही है, आप यकीन मानिए तो वो वायलिन या गिटार भी वही एहसास आपको दे रही है जो बात दे रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो अपनी तरफ से कुछ कहने की कोशिश कर रही है वायलिन, नहीं, बोलने वाले ने अगर रिपीट नहीं की बात तो उस कहत से ज्यादा, मैं कंपोजिशन की बात, धुन की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो तो वो तो बोलने का, स्पोकन पोएट्री का बैंड है, उस एहसास को आप तक पहुंचाने की कोशिश करता है वो वायलिन भी, वो गिटार भी। तो अपने तरीके का एक इंडिया का पहला पोएट्री बैंड है, और ये भी मेरी एक कोशिश। असल में होता क्या है, ये अक्सर खासकर हिंदी में ये बात की जाती है कि जी जो यूथ है वो पोएट्री से दूर हो रहा है, वो पोएट्री की तरफ आ नहीं रहा है। मुझे ऐसा लगता है यूथ अच्छी पोएट्री की तरफ आता है अगर उसको अच्छा लगता है। शायद कभी ना कह सकूं मैं तुमको, कहे बिना समझ लो तुम शायद, वो शायद गाना के हो, या अगर तुम साथ हो, या अगर कुन फाया कुन हो, या कोई और जग घूमे या थारे जैसा ना कोई, तो ये जो गाने हैं ये यूथ ने ही पसंद किए हुए गाने हैं। हम नहीं कह सकते कि वो उनको अच्छा नहीं लगता या उनको समझ में नहीं आती किसी भी तरह की बात। ये बात अक्सर कही जाती कि जो परोसा जाएगा वही तो खाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब अच्छी चीज़ हम देते हैं ऑडियंस को तो ऑडियंस उसको अप्रिशिएट करती है। ये एक किताब है इरशाद कामिल साहब की, इसका नाम है एक महीना नज़्मों का, जो कि 2015 में आई थी। हमें ये किताब 2017 में नसीब हुई, और इरशाद साहब ने इसमें लिखा था, अगर आपकी इजाज़त तो पढ़ूं, मोहतरमा कनक रेखा जी को, एक दिन कुछ नज़में मिली, मैंने दोस्तों में बांट दी, कुछ आपके लिए भी है इनमें। क्या खूबसूरत बात आपने इसमें लिखी थी। और इसका नाम एक महीना नज़्मों का क्यों है, ये आप बताइए। जी, मेरी जैसा आपने कहा 4 किताबें असल में मेरी आ चुकी हैं। एक किताब है समकालीन हिंदी कविता पे, समकालीन हिंदी कविता समय और समाज। एक मेरा प्ले आ चुका है बोलती दीवारें, और एक ये नज़्मों की किताब आ चुकी है, एक महीना नज़्मों का, और एक काली औरत का ख्वाब एक किताब है जो प्रोज की है, वो आ चुकी है। एक महीना नज़्मों का नाम इसलिए है, ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है। रात को आप करके देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा, बड़ा एक प्रैक्टिकल सी बात मैं आपको बता रहा हूं। रात को सोने से पहले आप किसी भी शायर की जो आपको पसंद हो, एक कविता या एक नज़म या एक गजल या एक कहानी, जो भी आपको पसंद हो, आप पढ़ के सोइए। उसके बाद आप खुद को जज कीजिए, 1 महीने के बाद आप बदले हुए इंसान होंगे, आप में थोड़ा सा फर्क आया होगा। क्योंकि ये अक्सर कहा जाता है कि सोने से पहले जिस बात के साथ हम सोते हैं वो अननोइंगली, सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग में चलती रहती है वो बात। कई बार हमें सपना भी आ जाता है। शाम को मान लीजिए अगर हमारी मदर का फोन आया हो तो सपने में दिखाई दे जाती है कि ये मुझे माँ दिखाई दी सपने में, या कोई और बात। तो आप एक नज़म पढ़ के सोइए, एक गजल पढ़ के सोइए, आप 1 महीने बाद महसूस करेंगे कि मेरा थोड़ा सा नजरिया बदल गया है चीजों को देखने का। तो ये 1 महीना नज़्मों का, ये असल में 31 नज़्मों की किताब है, पूरी 31 नज़में, और 31 उन नज़्मों की विंडोज हैं। जैसे जो इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले सुनाया था, कुछ रिश्तों का नमक ही दूरी होता है, ना मिलना भी बहुत जरूरी होता है, वो भी इस नज़म की किसी एक नज़म की विंडो है। अब मुझे ऐसा लगा कि 1 महीना नज़्मों का, और मैंने पहले प्रीफेस में लिखी भी ये बात कि रोज जरूरी नहीं आपको किताब 2 घंटे में, 4 घंटे में, 2 दिन में खत्म करनी है। एक नज़म पढ़िए, छोड़ दीजिए, एक नज़म पढ़िए, छोड़ दीजिए। तो इसलिए मैंने इसका नाम लिखा 1 महीना नज़्मों का, और फिर मैंने लिखा भी 1 महीना नज़्मों का जो जिंदगी भर चलेगा। कितनी खूबसूरत बात कही आपने, और यही दैट इज
That is the purpose of literature, to make us better human beings and for the readers to feel that aesthetic pleasure. तो इतनी देर बातचीत में कुछ तो इरशाद साहब का तारुफ आप लोग से हो गया, लेकिन एक बात मैं और इरशाद साहब से कहूँगी कि वो खुद पढ़ के सुनाए कि वो किस तरह के इंसान है। अच्छा, ये जो आपने हाईलाइट किया। जी, हमने हाईलाइट किया था कि हम पढ़ेंगे, लेकिन आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। जी, इसका प्रीफेस भी अभी आप पढ़ें तो बड़ा अच्छा लगेगा, पर क्योंकि बात हो रही है तो मैं बता रहा हूँ। इसका प्रीफेस भी नॉर्मली जिस तरह से प्रीफेस लिखे जाते हैं उस तरह से प्रीफेस नहीं है, थोड़ा अलग है। उसमें से इन्होंने कुछ किया है अंडरलाइन, वो मैं पढ़ देता हूं। मैंने उसकी तरफ देखा जरूर, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। वो फिर बोला, यूं ही टहल रहे हैं इस नीम सर्दी में या किसी काम से निकले हैं? उसकी बात का जवाब ना देने की गर्ज से मैंने पूछा, माचिस है? वो मुस्कुराता हुआ बोला, आग है। आखिर इस तरह से उसने अपनी बातों के धागे बांधने शुरू कर दिए। ये मेरी और उसकी पहली मुलाकात थी। तब तकरीबन 17 का रहा होगा वो। आप न जाने इरशाद कामिल को कैसे, क्यों और कितना जानते हैं, लेकिन मेरा यकीन माने कि मुझसे ज्यादा नहीं जानते होंगे। आप उसे जो भी समझें, लेकिन मैं उसे बेहद मामूली और फालतू दिमाग वाला इंसान मानता हूं। मामूली बातों से खुश हो जाता है और नाराज भी। खुशी कभी कभार जाहिर भी कर देता है, लेकिन नाराजगी ऐसे संभाल लेता है जैसे वो उसकी कमाई हो। फालतू नज़्मों से भरे हुए इस इंसान ने अपने आप को कभी संजीदगी से लिया ही नहीं। खाम ख्याली में इतना वक्त बर्बाद करता है जैसे वक्त उसका गुलाम हो और वो वक्त का बादशाह। आप वाकई वक्त के बादशाह हैं और हमारी यही भगवान से मनाते हैं कि आप इस तरह कलाम पढ़ते रहें और हम लोग कहते रहें इरशाद। अब कोई सवाल आप लोग कहना चाहें तो आप इरशाद साहब से पूछ सकते हैं। कोई बात कहना चाहें, कुछ आपको अच्छा लगा हो। हाँ, ज्योत्सना। ये भी बहुत जरूरी बात। आपका एक गाना है, उसमें लव आजकल में बड़ा मजेदार है, शादी वाला गाना, जिसमें देयर इज एन ओल्ड लेडी हु डांसेस एंड शी सिंग्स इन पंजाबी। पंजाबी जनरली मैं पहले मेरी शुरुआत पंजाबी गानों से ही हुई है। मैं आपको बताऊं, वो पंजाब में रहता था तो उन दिनों कैसेट्स बहुत बनते थे, तो उस दौरान फिर सब दोस्त यूनिवर्सिटी में ही होते थे। अरे चलो चलो कैसेट निकालते हैं, तो ठीक है, इसको स्टूडियो कहाँ मिलेगा? अरे उससे बात कर लेते हैं, वो तो पैसे मांगता है, तो कोई बात नहीं, कहीं से सिफारिश लेके आएंगे। तो इस तरह से बहुत सारे काम होते थे कि रात बराती टिमकन तारे सात सदीमी। अब मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग पंजाबी जानते होंगे, पर उन्होंने गाया है तो मैं 2 लाइनें ही सुनाऊंगा। सर रात बिराती टिमकन तारे सात सदीमी हिजरा मारे। मैं समझा भी देता हूं कि आधी रात को जो तारे हैं वो टिमटिमा रहे हैं और वो इस तरह से हैं जिस तरह से सूफी साधु होते हैं और बिरह के मारे हुए होते हैं। रात बिराती टिमकन तारे सात सदीवी हिजरा मारे, सच्चा प्यार है रुख पीपल दा, शरदा जोगा पूजन जोगा और पवे खबरे किस बनने। जो सच्चा प्यार है वो पीपल के रुख की तरह होता है, जैसे पीपल का रुख कहीं भी उग जाता है, दीवार पे उग जाता है, चुराहे पे उग जाता है। सच्चा प्यार है रुख पीपल दा, शरदा जोगा पूजन जोगा और पवे खबरें किस बनने, गली मोहल्ले चौक चुबारे, रात बराती टिमकन तारे। किसी को और कुछ कहना, पूछना कुछ है? सब जगह है। दीपा, आप भाई। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इतना सुंदर समा बांधने के लिए। और अब मैं
सीमू घई जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी। अफ्रीकी फ्लो की चेयरपर्सन है और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देती हैं। आपसे निवेदन है कि आप मंच पर आएं और हमारी तरफ से इरशाद जी को एक छोटा सा तोहफा भेंट करें। मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगी कि प्रभा केतान फाउंडेशन इंटरस्टेट हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट को भी प्रमोट करता है और यही वजह है कि हम इरशाद जी को राजस्थान की ये बेहद खूबसूरत लहरिया पेश कर रहे हैं। और अब मैं थैंक यू और अब मैं एहसास वुमेन ऑफ लखनऊ माधुरी हलवासिया जी को वोट ऑफ थैंक्स के लिए आमंत्रित करती हूँ। प्रभा केतान फाउंडेशन और एहसास वुमेन लखनऊ की ओर से मैं आप सभी अतिथियों का हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ, खासकर हमारे अतिथि इरशाद कामिल जी और उनसे बातचीत कर इस शाम को यादगार बना देने वाली कनक रेखा चौहान जी का। हम अपने प्रायोजक श्री सीमेंट, सहयोगी लखनऊ एक्सप्रेशन सोसाइटी, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर ताज महल लखनऊ और मीडिया पार्टनर दैनिक जागरण का भी आभारी हैं। अब आप सब इरशाद जी की किताब की एक कॉपी वहाँ से ले सकते हैं और उनसे साइन करवा सकते हैं। Gracias.